Is it visible, sir? हाँ सर, प्रॉपर दिख रहा है सर. Okay. Okay. So first of all, very good evening, dear students. In last lecture, we already discussed what is meant by cell theory, who proposed cell theory, the points of that cell theory. Then we discussed what is meant by totipotency, and finally we discussed about prokaryotic cell. Okay, so in cell or the types of cells are two types. Then we फिर प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग ने देखा व्हाट इज मीन बाय बैक्टीरिया, द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया. यस, हम लोग ने देखा था लास्ट टाइम. स्टूडेंट्स कोई मुझे यस और नो में आंसर दो. यस सर. यहाँ तक हम लोग ने क्लियर देखा था. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, यस. सो नाउ in today's lecture we are going to discuss about the structure of prokaryotic cell. So how the prokaryotic cell look like, okay, and what the parts of that prokaryotic cell. Its structure, and we have to draw the diagram. तो उसका डायग्राम अपने को बनाना पड़ेगा. ओके, सो आई विल now going to draw the diagram, a simple diagram for your understanding. Okay, so can you see that diagram? Is it visible properly? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So it is a structure of prokaryotic cell. The prokaryotic cell having few components. The first, cell envelope. Okay, cell envelope means the cell is protected by three coverings, or it is surrounded by three coverings. The outermost covering is known as glycocalyx. Then सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही. the middle covering is known as the outermost covering is called glycocalyx, and the middle layer is known as cell wall. Whereas audio. Okay, आवाज ठीक से नहीं आ रही है. यस सर, ब्रेक हो रही. बीच बीच में ब्रेक हो रहा है. ओके, अभी ठीक से आ रही है. यस sir. Okay, so our cell, prokaryotic cell, is consist of three layers. First, glycocalyx, second, cell wall, and third one is called plasma membrane. All these three layers togetherly known as cell envelope. ये तीनों लेयर को मिला के क्या बोला जाता है? सेल इनवलप. ओके, समझ में आया? सेल इनवलप क्या है? यस सर. Okay, so prokaryotic cell is covered by cell envelope, and cell envelope is nothing but three layers. Outermost layer is called glycocalyx, middle layer is called cell wall, and the innermost layer is called plasma membrane. Okay, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ
cell envelope. First layer is called glycocalyx. Second layer cell wall, and third layer plasma membrane. Okay. Now minimum 2 points about each and every layer. दो points देखते हैं हम लोग कि glycocalyx क्या होता है. So what is glycocalyx? Just now I told you glycocalyx, it is the outermost layer of prokaryotic cell or cell envelope. Okay, that glycocalyx is made up of polysaccharide. Polysaccharide मतलब क्या? What is the meaning of polysaccharide? Monosaccharide, disaccharide, polysaccharide. कभी नाम सुना है आपने? Yes. क्या होता है? Polysaccharide का मतलब होता है sugar, carbohydrate. Yes, carbohydrate. Okay, so that glycocalyx is made up of carbohydrate, polysaccharide and some protein. Okay? तो किससे बना ये? Sugar and protein से बना है. Okay, some proteins are present. Now what is the main function of glycocalyx? So glycocalyx अभी sugar है ना? Sugar ज्यादा है. So glycocalyx contain maximum sugar. Here, the glycocalyx helps in adhesion, sticking. Adhesion का मतलब क्या? Sticking. Okay. So glycocalyx helps in adhesion. Adhesion. तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में? What is the first point of glycocalyx? Glycocalyx, it is the outermost layer of cell envelope. Second point, it is made up of sugar and some protein and it help in adhesion. 3 point clear है क्या? Students? Yes, sir. Okay. Now next point, glycocalyx के बारे में. हाँ. हेलो. क्या हो गया? कुछ डाउट है? ओके. नेक्स्ट पॉइंट. क्या बोल रहे हो बच्चा? ग्लाइकोकैलिक्स का पॉइंट दो. हाँ, लिखना है आपको. यस सर. हाँ, लिख दो ना. आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल इनवेलप. outermost layer of cell envelope. Second point, made up of sugar and some protein. शुगर को पॉलीसैकेराइड बोला जाता है. हाँ, ध्यान में रखने का. पॉली मीन्स मेनी, सैकेराइड मतलब शुगर. तो बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल से बनता है पॉलीसैकेराइड. सो शुगर की जगह पे पॉलीसैकेराइड वर्ड आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना. सो इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड, ब्रैकेट में शुगर लिखो, and some protein. Third point, it help in adhesion. Adhesion का spelling बोर्ड पे लिखा हुआ है. Okay? Next point, glycocalyx का. Glycocalyx में some prokaryotic cell or some bacteria have a loose glycocalyx sheet. तो ग्लाइकोकैलिक्स का शीट कैसा रहता है? लूज रहता है, पतला रहता है, थिन रहता है. सो इन सम बैक्टीरिया द लूज थिन लेयर इज प्रेजेंट एंड दैट लेयर इज कॉल्ड स्लाइम लेयर. क्या बोला जाता है उसको? स्लाइम लेयर. सर रिपीट करो. हाँ, इन सम बैक्टीरिया द ग्लाइकोकैलिक्स इज लूज एंड थिन इन नेचर. सो ग्लाइकोकैलिक्स कैसा रहता है? लूज रहता है और थिन रहता है. सच लेयर इज कॉल्ड स्लाइम लेयर. उसको क्या बोला जाएगा? स्लाइम लेयर. इन अदर बैक्टीरियाज द ग्लाइकोकैलिक्स इज टफ एंड रफ. ओके, और वी कैन से इट इज थिक. ओके, सो इट इज थिक एंड टफ. Or we can say rough. Thick and rough, tough, and that is called capsule. So glycocalyx are of two type. तो glycocalyx के कितने टाइप है? 2 प्रकार है. In some bacteria, loose, thin glycocalyx is present,
called slime layer, whereas in other bacteria thick and tough glycocalyx is present called capsule. Okay, and capsule वाले जो होते हैं ना जिनका glycocalyx tough होता है, these bacteria are mostly dangerous or harmful bacteria. The bacteria whose glycocalyx is tough or we can say capsulated, such bacteria are harmful bacteria. तो glycocalyx समझ में आ गया क्या आपको? Yes, sir. Bacteria, sir. Bacteria? Rough bacteria are called? हाँ, rough bacteria नहीं, glycocalyx. Such bacteria की बात ही नहीं चल रही है यहाँ पे. Glycocalyx की बात चल रही है. Okay? So some bacteria have thick and rough glycocalyx. Okay? तो glycocalyx को हम लोग कैप्सूल बोलते हैं, और जिसका स्मूथ रहता है, लूज रहता है, उस ग्लाइकोकैलिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? Slime. स्लाइम लेयर. तो ग्लाइकोकैलिक, हाँ, ग्लाइकोकैलिक्स आर ऑफ टू टाइप. वन इज लूज एंड सेकंड वन इज रफ, थिक. लूज वाले को क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर. टफ वाले को क्या बोलेंगे? कैप्सूल. और जिनकी ग्लाइकोकैलिक्स टफ होती है, बराबर, जिनका ग्लाइकोकैलिक्स टफ होता है, वो डेंजरस होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं. तो ग्लाइकोकैलिक्स समझ में आ गया? Yes. ओके. द नेक्स्ट सेल इनवेलप, दैट इज सेल वॉल. दूसरा क्या है? सेल वॉल होता है. नाउ व्हाट इज सेल वॉल? क्या होता है सेल वॉल? कभी नाम सुना है आपने सेल वॉल का? हैव यू हर्ड अबाउट सेल वॉल? किसमें होता है? Yes. Plant cell. Plants में. Very good, very good, very good. Shabash. So plant cell contain cell wall. So what is cell wall? So it is middle layer of cell envelope. तो मिडल लेयर है. सेल वॉल इज अ मिडल लेयर. पहला पॉइंट क्लियर? इट इज अ मिडल लेयर ऑफ सेल इनवेलप. डन. दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, सेल वॉल प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द सेल. सेल वॉल क्या करता है? दे प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द सेल. वो सेल को सपोर्ट देता है और शेप प्रोवाइड करता है. हम लोग ने कल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, बराबर कि नहीं? हनीकॉम. तो हनीकॉम का जो शेप होता है वो किसकी वजह से था? सेल वॉल की वजह से. इट इज बिकॉज ऑफ सेल वॉल. हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. तो सेल वॉल प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द सेल. क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now the cell wall is again made up of two main materials. एक होता है ग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन. पेप्टाइड मतलब नाम सुना है कभी? पेप्टाइड? Yes. Peptide bonds. यस, पेप्टाइडोग्लाइकन. पेप्टाइड मतलब प्रोटीन्स, ध्यान में रखो. पेप्टाइड मतलब क्या? प्रोटीन. प्लस ग्लाइकन मतलब शुगर. सो इनका जो, हाँ, made up of sugar packet glycan. Sir, your voice is breaking. Okay, 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 Repeat again. Repeat. okay. हाँ, I'm repeating. The cell wall, it is a middle layer of the cell envelope. It is middle layer of cell envelope. Clear? Second point, it provide shape and support to the cell. Third point, it is made up of peptidoglycan or pseudo का मतलब false मतलब हाँ, ओके, झूठ मूठ के. ठीक है? तो दो टाइप के सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं. एक होता है पेप्टाइडोग्लाइकन एंड द अनदर वन इज सूडो पेप्टाइडोग्लाइकन. डन? अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स?
Yes, sir. Okay. Now the third layer, that is plasma membrane. Now what is plasma membrane? So plasma membrane, it is the innermost layer of cell envelope. Okay. So it is the innermost layer of cell envelope. पहला कौन सा था? outermost कौन सा था? Which one is outermost? Yes, glycocalyx. Yes. Middle one is cell wall and the innermost is plasma membrane. Done. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पॉइंट्स क्या क्या बताएंगे हम लोग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, Innermost layer of the cell. यस, इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल इनवेलप. पहला पॉइंट क्लियर? इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स. ओके, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स. लिपिड्स मतलब क्या? फैट्स. Fats. ओके, सो इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. सेकंड पॉइंट क्लियर? एकदा परत सांगा. हा, पहिला पॉइंट काय बघ सांगितला मी प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचा. व्हॉट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन? इट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल envelope. Okay. Second, plasma membrane is made up of lipid and protein. Lipid and protein से बना हुआ है. Okay, done. Yes, sir. Third point plasma membrane का. Plasma membrane provide shape and support to the cell. Plasma membrane provide shape and support to the cell. Okay, तीसरा पॉइंट समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. हाँ. In prokaryotic cell, the plasma membrane shows near the plasma membrane many activities takes place. In prokaryotic cell, near the plasma membrane many activities takes place such as respiration, photosynthesis, etc. Near the plasma membrane many activities takes place such as respiration, photosynthesis, DNA replication, etc., etc. So these are the few points of plasma membrane. Have you understand all these points? Sir, repeat. Respiration. Excretion, respiration, these are the some activities takes place. Excretion का मतलब समझा आपको? Removal of waste material from the body. Body के बाहर waste material जाते हैं, उसको हम लोग excretion बोलते हैं. Respiration, excretion, DNA. DNA replication. DNA replication मतलब एक DNA के 2 DNA बन जाना. ओके, जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम डबल होते हैं कि नहीं? वैसे ही तो उसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक है. सो दिस ऑल एक्टिविटीज टेक्स प्लेस नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अंडरस्टैंड? Yes. sir. ऑल these 3 layers togetherly called cell envelope. तो सेल envelope क्लियर हो गया आपका? Yes. Yes, sir. Okay. Now the second point after cell envelope is cytoplasm. The next point after cell envelope is cytoplasm. कौन बताएगा क्या होता है cytoplasm? बहुत बार नाम सुनते हैं हम लोग. Number of time we heard about cytoplasm. So what is cytoplasm? कौन बताएगा साइटोप्लाज्म के बारे में मुझे? एनी आइडिया अबाउट द साइटोप्लाज्म? Liquid that fills inside a cell. अच्छा, लिक्विड, बराबर कि नहीं? तो यहाँ पे मैं निकालता हूं. ये देखो, दिख रहा है आपको? ये डॉट डॉट दिख रहा है सेल के अंदर? दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. So this is what? So cytosol is nothing but semi-solid gel-like substance present inside the cell.
व्हाट इज साइटोप्लाज्म? सेमी सॉलिड जेल लाइक सब्सटेंस. ओके, क्लियर? समझ में आ रहा है साइटोप्लाज्म के बारे में? Yes, sir. ओके. Yes, sir. Second point, cytoplasm is also known as ground substance or matrix. Also known as ground substance और मैट्रिक्स. उसको मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस बोला जाता है. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स. दिख रहा है आपको? Yes, sir. Okay, okay. Now, cytoplasm in prokaryotic cell, the cytoplasm does not show cytoplasmic streaming. cytoplasm साइड से हिलते रहता है. जैसे हम लोग बात कभी कभी हम लोग इसमें जाते हैं ना, पूल में जाते हैं, स्विमिंग पूल में, तो वेव्स आती हैं साइड से. बीच में हम लोग खड़े रहते हैं और साइड से वेव्स आती है, वो जनरेट करते हैं आर्टिफिशियली. आपने देखा है कभी? Yes, sir. जब हम लोग रिसोर्ट जाते हैं तभी आपने देखा होगा शायद. तो वो मूवमेंट होती है, वो साइड से, कॉर्नर से ज्यादा होती है और बीच में ज्यादा पता नहीं चलता अपने को कि हो रहा है करके. तो वैसे ही इसमें भी इन साइटोप्लाज्म, इन प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग डज नॉट टेक्स प्लेस एंड दैट साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज कॉल्ड साइक्लोसिस. तो क्या होता है? साइक्लोसिस इज एब्सेंट. यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म मूवमेंट नहीं करता ज्यादा, साइड बाय साइड बॉर्डर पे. ओके, सो इन प्रोकैरियोटिक सेल साइटोप्लाज्म डज नॉट शो साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज एब्सेंट, दैट इज साइक्लोसिस इज एब्सेंट. तीसरा पॉइंट समझ में आ गया? Yes, sir. Oh, ओके, नेक्स्ट. In prokaryotic cytoplasm, cell organelles like mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, etc. are absent. Okay. So in prokaryotic cell cytoplasm, cell organelles like mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, etc. are absent. Sir, तो उनमें move. सेल ऑर्गन, हाँ बोलो ना बच्चा, क्या हुआ? Sir, move the camera. Camera. एक मिनट, आई विल शो यू. Is it visible now? Yes. Yes, sir. Okay. sir, ER means ER मतलब endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. Okay. That we will discuss later on in detail. हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ने वाले उसके बारे में. ओके, अभी ध्यान में रखो सिर्फ नाम. तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स होते हैं, बराबर. जैसे हम अपने बॉडी के अंदर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, हाँ, लीवर है, हार्ट है, तो अपने बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स है, बराबर कि नहीं है? वैसे सेल के अंदर के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस, हाँ, वो सब एब्सेंट होते हैं. किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म. तो उनमें एब्सेंट रहेंगे, अपने में प्रेजेंट है. एंडो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके. yes, sir. वापिस से एक बार मैं बोल रहा हूँ, सब पॉइंट सुन लो साइटोप्लाज्म के. व्हाट इज साइटोप्लाज्म? सो साइटोप्लाज्म इट इज अ सेमी सॉलिड जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल. सेल के अंदर जो सेमी सॉलिड जेल जैसा सब्सटेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के और दूसरे कौन से नाम है? विच आर द अदर नेम्स फॉर साइटोप्लाज्म?
So ground substance or matrix. Okay. In prokaryotic cell, the cytoplasm does not move from the or we can say periphery. जो peripheral part होता है, border part होता है, वहां पे movement नहीं दिखा था, तो हम लोग ने लिखा cyclosis is absent, cytoplasmic streaming is absent, and cytoplasm, in cytoplasm, cell organelles like mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, etc. absent. तो क्या प्रेजेंट रहता है फिर साइटोप्लाज्म में? बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा? तो पहले यहां तक ये 4 पॉइंट समझ में आ गए क्या आपको? यस सर। तो मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा क्योंकि पॉइंट लिखने हैं। और तो व्हाट इज प्रेजेंट, व्हाट आर द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? तो पहला नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम लोग 5th पॉइंट बोलेंगे। 5th पॉइंट क्या रहेगा? So many molecule such as mesosome, chromatophores and inclusion bodies are present. क्या क्या प्रेजेंट है? मेसोजोम, क्रोमैटोफोर्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। ओके, मेसोजोम आपको यहां पे दिख रहा है, दिख रहा है कि आपको ये जो बीच में एक नीचे की तरफ आया हुआ पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेसोजोम। ओके, फिर क्रोमैटोफोर्स, बीच बीच में निकालेंगे हम लोग क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स क्या होते हैं? दीज आर कलर्ड पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, क्रोमैटोफोर्स क्या होते हैं? क्रोमैटो का मतलब होता है कलर्ड, फोर्स मतलब पिगमेंट, क्रोमैटोफोर्स। सो दीज आर द कलर्ड पिगमेंट विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। सो व्हाट इज मेसोजोम? मेसोजोम क्या है? कौन बताएगा मुझे? सबसे अंदर वाला लेयर कौन सा है? विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इनवलप? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बराबर है। प्लाज्मा तो ये मेम्ब्रेन। ओके, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर वाली लेयर। वो अंदर वाली लेयर कहां पे फोल्ड हुआ है? अंदर की बाहर की तरफ। वेयर इट गेट फोल्डेड? सो इट फोल्डेड इनसाइड द सेल, बराबर कि नहीं? इनसाइड द सेल, आउटसाइड नहीं हुआ है, इनसाइड हुआ है, अंदर की तरफ, बराबर ना? तो इसको हम लोग बोलेंगे इनफोल्डिंग। क्या बोलेंगे इसको? इनफोल्डिंग। और इट इज ऑल्सो नोन एज इनवैजिनेशन। इनवैजिनेशन का मतलब है इनफोल्डिंग। ओके, सो व्हाट इज मेसोजोम? मेसोजोम्स आर नथिंग बट, मेसोजोम इज नथिंग बट इनवैजिनेशन और इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक लाइन में अगर सवाल पूछा आपको, इफ द क्वेश्चन कम्स इन वन लाइन, सिंगल लाइन, बराबर, क्या लिखोगे आप लोग? व्हाट इज मेसोजोम? मेसोजोम इज इनफोल्डिंग और इनवैजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, डन। व्हाट इज द एग्जैक्ट फंक्शन? मेसोजोम का फंक्शन पता है क्या आपको? Repeat again definition of mesosome. Mesosome is nothing but invagination. It is invagination or infolding of plasma membrane. Plasma membrane अंदर की तरफ fold होता है. It get folded inside the plasma. We can say cell. तो infolding बोलेंगे उसको. तो mesosome is nothing but infolding of plasma membrane. In simple word. The exact function is still unknown. The exact function of mesosome is still unknown. Unknown है, मालूम नहीं. Exact function of mesosome is still unknown. But some scientists believe that mesosome help in DNA replication, cell division, etc. Okay? तो 3 पॉइंट बोले मैंने. पहला पॉइंट डेफिनेशन, सबको पता है डेफिनेशन. What is mesosome? इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. पहला क्लियर हो गया. दूसरा पॉइंट
exact function still unknown. Exact function is still unknown. Third point, but some scientists believe that it help in cell division, DNA replication, etc. कुछ साइंटिस्ट लोगों को लगता है, ऐसे मानते वो लोग कि मेसोसोम डीएनए रेप्लिकेशन में, सेल डिवीजन में मदद करता होगा. कंफर्म नहीं है, उनका मानना है. डन. मेसोसोम के बारे में समझ आ गया? ठीक है. Shall we proceed further? Yes, sir. Okay. Now next point is chromatophore. Just now I told you what is chromatophore. These are photosynthetic pigment present inside the bacteria and cyanobacteria. So these are the pigment present in photosynthetic bacteria and cyanobacteria. ये pigments होती हैं, colored pigments होती हैं, which is present in photosynthetic bacteria and cyanobacteria. Cyanobacteria का क्या नाम बताया था मैंने दूसरा? What is the another name for cyanobacteria? Blue green algae. Blue green algae. Very good, very good. So blue green algae is the another name for cyanobacteria. So blue और green क्या है? What is the blue and green? These are the pigment. So these pigment help in photosynthesis. So chromatophore, these are the pigment, colored pigment present in photosynthetic bacteria and cyanobacteria. Clear? पहला point clear है क्या? Have you understand first point? Okay, repeat कर रहा हूँ. Chromatophores are colored pigment found in photosynthetic bacteria and cyanobacteria. They are found in photosynthetic bacteria and cyanobacteria. Okay, clear? Yes, sir. Okay. कौन से होते हैं क्रोमेटोफोर्स? सो दीज आर फ्यू टाइप्स कलर पिगमेंट्स होते हैं. पहला होता है बैक्टीरियोक्लोरोफिल. नॉर्मली अपन क्लोरोफिल सुना है ना नाम, बराबर कि नहीं? क्लोरोफिल होता है, प्लांट सेल में होते हैं, तो उसके आगे बैक्टीरिया लिखना है, बैक्टीरियोक्लोरोफिल. कैरोटिनॉइड, कैरेटिन नाम सुना है कभी? कैरेट के अंदर होता है. सो कैरोटिनॉइड, बैक्टीरियोक्लोरोफिल, these are the few types of chromatophores. ये कुछ टाइप क्रोमेटोफोर्स के थे, कैरोटिनॉइड, बैक्टीरियोक्लोरोफिल, बैक्टीरियोफाइफाइटिन. ओके, ज्यादा नहीं, दो नाम भी याद रखोगे तो हो जाएगा. Okay. So what is chromatophore? These are the colored pigment found in photosynthetic bacteria and cyanobacteria. आवाज नहीं है. आवाज येत नाही आहे? आता येतोय? नहीं है. अजून नाही येत आहे? हाँ. सर आ रहा है. आ रहा है ना? यस सर. ओके ओके. कभी कभार नेटवर्क नहीं होता है ना, तो थोड़ा आगे पीछे होता है. So chromatophores are nothing but colored pigments found in photosynthetic bacteria and cyanobacteria. कौन से होते हैं वो कलर्ड पिगमेंट्स? कैरोटिनॉइड एंड बैक्टीरिया क्लोरोफिल. ओके. थर्ड, इंक्लूजन बॉडीज. थर्ड क्या है? इंक्लूजन बॉडीज. व्हाट इज इंक्लूजन बॉडी? सो इंक्लूजन बॉडीज आर नथिंग बट स्टोरेज ग्रैन्यूल. इंक्लूजन बॉडीज का मतलब क्या होता है? स्टोरेज ग्रैन्यूल. They store something, that's why they are called storage granule. Okay, so they are nothing but what? Storage granule. And these storage granules are of two type. दो प्रकार के होते हैं. एक होता है organic और दूसरा होता है inorganic granules. So what is inclusion bodies? Inclusion bodies are storage granules. Okay, how many types of inclusion bodies present in the cell? Two types. पहला कौन सा है? ऑर्गेनिक. और दूसरा कौन सा है? इनऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स.
अभी ऑर्गेनिक ग्रैन्यूल किसके लिए होते हैं? ऑर्गेनिक ग्रैन्यूल में क्या स्टोर होगा? स्टार्च एंड वी कैन से ग्लाइकोजन। तो स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है, वो स्टोर करते हैं। स्टार्च कौन से बैक्टीरिया स्टोर करते होंगे? स्टार्च किसमें पाया जाता है? विच बैक्टीरियाज स्टोर स्टार्च इन देयर ग्रैन्यूल्स? एनीवन कैन आंसर? कोई कर रहा है आंसर? Which bacterias shows starch for their storage granule in their storage granule? Those who do photosynthesis. तो जिनमें photosynthesis होता है, such bacteria show or deposit starch in their granule. Okay, and glycogen are the bacteria who do not perform photosynthesis. तो जो photosynthesis नहीं करते उनमें ग्लाइकोजन स्टोर होगा, और जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें स्टार्च होगा स्टोर। अंडरस्टैंड? तो ये हो गए ऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स। एंड अनदर वन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स। इनऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स में क्या क्या स्टोर होगा? सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। फाइन। तो इंक्लूजन बॉडीज क्या है? इंक्लूजन बॉडीज आर नथिंग बट स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज ग्रैन्यूल प्रेजेंट इन द सेल? 2 टाइप्स। 2 टाइप के स्टोरेज ग्रैन्यूल्स होते हैं। पहला कौन सा है? ऑर्गेनिक स्टोरेज ग्रैन्यूल, और दूसरा कौन सा है? इनऑर्गेनिक। ओके, ऑर्गेनिक में क्या क्या स्टोर होता है? ऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स में व्हाट इज? स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ओके, डन। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। इनऑर्गेनिक में क्या क्या स्टोर होएगा? व्हाट विल स्टोर इन? सल्फर एंड फॉस्फोरस। डन। यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. That is all about the cytoplasm. ये पूरा साइटोप्लाज्म के बारे में है, ठीक है? So that is all the points of cytoplasm. So what is cytoplasm? It is a semi-solid gel-like substance. It is also called ground substance or matrix. बराबर? तीसरा, it does not show cyclosis or cyclosis is absent. Fourth point, it do not contain many cell organelles like mitochondria, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, etc. And it shows the presence of mesosome, chromatophore and inclusion bodies. तो मेसोसोम के बारे में मैंने बता दिया आपको क्या होता है मेसोसोम। इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्रोमेटोफोर्स के बारे में बता दिया, these are nothing but color pigment present in photosynthetic bacteria and cyanobacteria, and inclusion bodies are nothing but what? Storage granules. Understand? Clear up to Yes, this? sir. Yes. Any doubt regarding Yes, this? No, No, sir, no doubt. Okay, okay. If you have, you can ask me, no problem. Next, third point after cytoplasm, the third important point is ribosome. The third important point is ribosome. Ribosome. Okay. So what is ribosome? पता है आपको क्या होता है राइबोसोम? कभी सुना है राइबोसोम के बारे में आपने? Have you heard about ribosome? As in nitrogen fixation. Right, that is rhizobium, not ribosome. Ribosomes are nothing but protein factories of the cell. Protein RNA. Protein factories of the cell. तो सेल की प्रोटीन फैक्ट्रीज होती वो. ओके, सो राइबोसोम आर मेड अप ऑफ आरएनए. किससे बनता है ये राइबोसोम? आरएनए. आरएनए का फुल फॉर्म सबको आता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड. बराबर बराबर, वेरी गुड वेरी गुड. So ribosome, in prokaryotic cell, the ribosomes are present. The ribosomes are made up of 2 main parts, RNA and proteins. Okay. In prokaryotic cell, the ribosome is 70S type. Prokaryotic cell में ribosome कौन से type का होता है? 70S type. 70S. Now what is meant by S?
एस क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट. So what is ribosome? S stands for Swedberg's unit. दिख रहा है आपको? थोड़ा लाइट दिख रहा है क्या? मैं यहाँ पे लिख रहा हूं. दिख रहा है आपको स्वेडबर्ग्स यूनिट? क्लियर दिख रहा है क्या? मैं वापस सारे पॉइंट रिपीट कर रहा हूं. देखो, राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल, द राइबोसोम मतलब डार्क कलर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. इन प्रोकैरियोटिक सेल द राइबोसोम्स प्रेजेंट इन द डार्क डेंस कलर. दे आर मेड अप ऑफ टू मेन पार्ट्स, आरएनए एंड प्रोटीन. दो पार्ट से बने हुए होते हैं, आरएनए और प्रोटीन से बने हुए होते हैं. थर्ड पॉइंट, इन प्रोकैरियोटिक सेल the ribosomes are 70S type. कौन से टाइप के होते हैं? 70S टाइप. S का मतलब क्या बताया मैंने? What is the meaning of S? It is a yes, it is a unit, Swedberg's unit. Clear? And this 70S type is made up of two subparts, two subunits, 50S and 30S. Now 70S type of ribosome made up of, formed by two subunit 50S and 30S. कौन से दो यूनिट से बना है 70? 50 और 30S से बना है. सर 50 एंड 30 कितना होता है? 80 होता है ना, बराबर कि नहीं? लेकिन मैंने 70 लिखा है, तो कुछ गलत है क्या? इज इट रॉन्ग समथिंग? कैलकुलेशन में कुछ गलती हो रही क्या अपनी? यस ना, आपको लग रहा है ऐसा, बराबर कि नहीं? आप बोल रहे हो सर 70S टाइप का है और दो पार्ट जो है, एक 50S का है और 30S का है, तो उसका तो आंसर 80 आता है. आप 70 बोल रहे हो, है कि नहीं? तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. आपके पास दो थ्रेड्स हैं. यू हैव टू थ्रेड्स, दो डोरा है आपके पास. एक 50 सेंटीमीटर है, एक 30 सेंटीमीटर है. ओके, अंडरस्टैंड? समझ रहा है क्या आपको? यस सर. आपके पास दो थ्रेड्स हैं. एक 50 सेंटीमीटर लंबा थ्रेड है और एक 30 सेंटीमीटर लंबा थ्रेड है. नाउ यू हैव टू बाइंड. आपको दोनों को बांधना है. आफ्टर बाइंडिंग यू मेजर द लेंथ. व्हेन यू मेजर द लेंथ इट कम्स 80 और लेस. Less than 80. Less than 80. The same thing happens here. When both subunit join together, some part of the unit is utilized for binding process. So binding में utilize हो जाता है, and that's why the total number comes less. Understand? Yes sir. Clear? Yes. When both the subunit bind together, the total number decreases. That's why the 70 comes, not 80. Fine? Yes And sir. what is the main function of ribosome? Synthesis of protein. What is the main function of ribosome? Synthesis of protein. Clear? Yes, sir. तो पॉइंट, राइबोसोम के पॉइंट समझ में आ गए आपको? What is ribosome? Ribosome, these are nothing but a very dark, dense granule present inside the cytoplasm. Dark, dense granules होते हैं, वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं. They made up of RNA and protein. वो RNA और प्रोटीन से बने हुए होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है, इन प्रोकैरियोटिक सेल द राइबोसोम इज 70S टाइप, and that 70S type ribosome consists of two subunit 50S and 30S. वो दो सबयूनिट से बना हुआ रहता है, 50S and 30S. And the last point, function. क्या फंक्शन है राइबोसोम का? They help in protein synthesis. They help in protein synthesis. Okay, clear? Yes, sir. Yes sir. How much time is left? Is it over? Yes, sir. Yes sir. Okay, so we will stop here. Yes, And sir. the remaining part we will discuss in the next lecture. Okay?
Yes, sir.